Namaskar. My name is Vishakha Rajurkar Raj and I am a working committee member in Dushyant Kumar Smarak Pandulipi Sangrahalaya, which is based in Bhopal, Madhya Pradesh, India. So this is a unique kind of a museum where we keep manuscripts and usable things of the literature laureate in across all the Indian languages. So when I'm saying manuscripts, so we have different kind of formats also. Like we have letters, we have notes, we have poems, we have again in poems we have kavita, we have ghazal. We also have stories and scripts. So for example, we have a script of film Andhi, which is based on the story of Kamleshwar, and the name of the story is Kali Andhi. We have a letter written by Gurudev Rabindranath Tagore, which is like ages old. We have many manuscripts of Dushyant Kumar himself, and let me tell you that this museum is based in the memory of Dushyant Kumar, but we keep the manuscripts and things of almost all the Indian writers who have been here. We try to preserve the memories of Indian culture because handwritings are something that have something very special about human beings. And let me tell you again that this is a very important museum in this age of again digitalization and technology, where we are writing everything on our phones or laptops or PCs. So this is a place where you will find the soul of the writers. But the challenge that we face here primarily is that these are manuscripts and these are written on the pages which get old with time. So it is very important to digitalize this material so that it can be kept forever, one. And second, so that it can also be disseminated among the research scholars and whosoever wants to study literature and manuscripts, so that we are also able to secure the pages, not damage them, and then it can also be given to other people to study. So the idea is to just get this digitalized and be able to secure the whole virasat जो है भारत की, we can secure that. Thank you so much. I'm really glad to be talking to all of you. Thank you. हमारे यहाँ पर 3 राष्ट्रीय स्तर के सम्मान हैं और लगभग 12-15 जो है वो स्मृति सम्मान है। राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों में दुष्यंत अलंकरण यहाँ सबसे बड़ा है। उसके बाद में आंचलिक भाषा सम्मान है, जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे बुंदेली हो, बघेली हो, भोजपुरी हो, छत्तीसगढ़ी हो, मालवी हो, उनके जो प्रमुख साहित्यकार होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और एक है दीर्घ साधना सम्मान। आप देखेंगे यहाँ दुष्यंत अलंकरण जो है देश के मुख्य जो साहित्यकार रहे हैं उनको दिया गया है। जैसे आदम गोंडवी है, सूर्यकांत नागर जी है, ज्ञान चतुर्वेदी, ये जितने अभी इस वर्ष हमने ममता कालिया जी को दिया है। इस वर्ष हमने ममता कालिया जी को दुष्यंत अलंकरण दिया है। इसके अतिरिक्त भी स्मृति सम्मान है, उसमें कमलेश्वर है, बाल कवि बैरागी है, कन्हैयालाल नंदन है, हमारे जवाहर कर्नावट तो भी यहाँ पे सम्मानित हो चुके हैं और अनेक देश के मूर्धन्य साहित्यकारों को हमने सम्मानित किया है। तो हमारे फुलब्राइट हेज बुक प्रोजेक्ट अब्रॉड जो है उसका उद्देश्य ये है कि एथनिक लैंग्वेज, हेरिटेज लैंग्वेज यानी जैसे हिंदी है, तो हिंदी को अमेरिका में हेरिटेज लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, उसकी शिक्षा दी जाती है। और एक दूसरा जो फ्रेज है नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस, कई तरह के हैं जिनको की सरकार ने माना हुआ है, तो उसके तहत हमें हिंदी पढ़ाने का वहाँ पर बहुत सारे अवसर कुछ विद्यालयों में है, जहाँ भी साउथ एशिया इंस्टीट्यूट है या वैसे भी हिंदी का विभाग है, तो उसके बहुत सारे प्रतिभागी हैं, वो सब अपना परिचय देंगे। तो लोग तो वैसे हमसे जब संग्रहालय देखते हैं तो पूछते हैं कि ये क्या आपके रिश्तेदार हैं? तो हम कहते हैं कि भले ही हम पारिवारिक रूप से या खून का रिश्ता नहीं है, मगर हमारा जो साहित्य का रिश्ता है वो एक लंबा रिश्ता है और वो बहुत दूर तक भी ये रिश्ता चलेगा।
ऐसा हम मानते हैं। मैं आप सबका स्वागत करते हुए, चूँकि जब आप संग्रहालय देखेंगे तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि लगभग सभी जगहों पर दुष्यंत जी की इस किताब की बहुत चर्चा होती है। इसका नाम है सायमिथु। दुष्यंत जी ने वैसे तो कहानी, उपन्यास, कविताएं लिखी हैं और आप ये देखेंगे कि उनके सारे जो रचनाएं हैं उनका एक समग्र रचनावली निकली है 4 खंडों में और वो हमारे संग्रहालय में है। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो उनका शोध किया है वो भी हमारे यहाँ पर है। मैं आपको 2 लाइनें वो सुनाना चाहूँगी जिसके कारण संग्रहालय दुष्यंत कुमार जी बहुत चर्चित हैं और जाने जाते हैं। जैसे, कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इसके बाद, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा।